तो प्रीवियसली हमने कल समरी नोट से देखा था दैट हाउ आर नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर्ड। नर्व इम्पल्स तभी आपके पास ट्रांसमिट होगी जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सो वी नाउ नो दैट द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस and these impulses travel very rapidly along the cell surface membrane from one end of the cell to the other. And they are not a flow of electrons like an electric current. The signals are very brief changes in the distribution of electric charge across the cell surface membranes. These signals are called action potentials, and they are caused by a very rapid movement of sodium ions and potassium ions across the axon membrane between the tissue fluid and the cytoplasm of the axon. अब टिश्यू फ्लूइड क्या है और साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन क्या है? दिस इज द सराउंडिंग्स आर व्हाट द टिश्यू फ्लूइड। आपकी सारी सराउंडिंग जो है वो टिश्यू फ्लूइड है, और इनसाइड ऑफ द एक्सॉन आपके पास वो उसका साइटोप्लाज्म है बेसिकली। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये जो सिग्नल्स जनरेट होंगे, ये सारे कैसे होंगे? बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द cytoplasm and the tissue fluid. So what is action potential? Action potential is a brief change in the potential difference from minus 70 milliwatt to 30 milliwatt across the cell surface membranes of the neurons and the muscle cells caused by the inward movement of sodium ions. Here are the three diagrams that you can see for a sensory neuron, a relay neuron, and a motor neuron. So starting off with the very first stage, एक स्टेज आएगी कि आपका स्टार्ट है रेस्टिंग पोटेंशियल पे है अभी, ठीक है। Some axons in animals such as the squids and earthworms are unmyelinated and they are very wide. It is possible to insert tiny electrodes into their cytoplasm to measure the changes in their electric charge, and figure 15.10 also shows one of these axons. And in a resting axon, there is no transmitting impulses क्योंकि उस वक्त वो अपने रेस्टिंग स्टेट पे है। बट रेस्टिंग स्टेट पे कैसे है कि आपका जो ये एक्सॉन है उसकी अंदर वाली साइड वुड ऑलवेज बी मोर नेगेटिव, और बाहर वाला जो आपका टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग्स है एक्सॉन की, वो आपके पास ऑलवेज मोर पॉजिटिव है। सो ये जो डिफरेंस होता है दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और हम कहते हैं कि अभी अंदर का फिलहाल है -60 मिलीवोल्ट टू -70 मिलीवोल्ट के अराउंड वो रेंज कर रहा होता है। दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल कि -60 टू -70 के दरमियान उसके भी फिलहाल रेंज है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनसाइड ऑफ द एक्सॉन इज बिटवीन 60 milliwatt and 70 milliwatt lower than the outside. We call this difference as the resting potential, and there are several factors that contribute to a resting potential of a neuron. जैसे कि पहले द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? इट्स अ पंप, वाओ, ठीक है, और इट ऑलवेज पंप्स 3 sodium out and 2 sodium 2 potassium inside. अब क्वेश्चन ये है कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किसने किया हुआ? सोडियम पोटेशियम पंप ने, विच आर देयर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन को ये मैनेज कर, इट्स अ कैरियर प्रोटीन, एंड दीज कॉन्स्टेंटली मूव सोडियम आयंस आउट ऑफ द एक्सॉन and the potassium ions into the axon. The sodium potassium pumps are the membrane proteins that use energy from the hydrolysis of ATP to move both of these ions against their concentration gradients. 3 sodium ions are removed from the axon for the every 2 potassium ions which are brought in for every molecule of the ATP which is hydrolyzed. Now, the presence of many organic anions inside the cells, such as the negatively charged proteins, और अंदर बहुत सारा ना नेगेटिव माल जमा हो गया। हम ये कह सकते हैं कि इतने आयंस आए अंदर वो सारे, ठीक है, और अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव माल जमा हो गया क्योंकि बहुत से आपने जो पॉजिटिव आयंस थे वो बाहर मूव हो गए। जैसे कि आपके पास सोडियम आपने मूव किया, और आप पोटेशियम जो अंदर लाए थे वो भी अपने दूसरे रास्ते छुपके से वापस बाहर जा चुके हैं। Now, the impermeability of the membrane to ions, sodium ions cannot diffuse through the axon membrane when the neuron is rest. Remember from chapter 4 that the phospholipid bilayer has a hydrophobic pore, which means कि वो अपनी movement of ions को आने जाने नहीं दे सकता। आयंस या तो चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही अंदर बाहर जा सकते हैं। सो here you can see ये एक एक्सॉन है, और एक्सॉन को उन्होंने स्टिमुलेट कैसे कर दिया है? बाय गिविंग इट अ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड से उन्होंने करंट प्रोवाइड किया है टू दिस अनमाइलिनेटेड एक्सॉन ताकि वो देख सके। नाउ बिफोर टचिंग द एक्सॉन, the two electrodes are at the same electric potential, so the voltmeter shows a potential difference of 0. उसके बाद क्या हुआ? That when one electrode is pushed inside the axon, the voltmeter shows that there is a potential difference between inside and outside जो कि -70 का है।
कि अंदर वाला बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो बाहर वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये मेंटेन हुआ है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। है यू कैन सी दिस इज द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। बाहर आप अंदर आप देख सकते हो आपके पास सारा कंप्लीटली नेगेटिव है, और बाहर वाला आपके पास सारा पॉजिटिव है, विच इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। इनसाइड वाला इज अराउंड -70 मिलीवोल्ट के करीब इसकी पूरी रेंज जाती है। नाउ हाउ इज दिस मेंटेन? यू कैन सी these are your sodium potassium pumps. सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करें? 3 सोडियम आयंस बाहर और साथ ही साथ 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड। ये वाला सोडियम पोटेशियम पंप भी यही काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर वाली साइड बहुत ज्यादा नेगेटिव रह जाती है। तो उसको हम कहते हैं देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। It is a difference in the electrical potential between 2 points in the nervous system between the inside and the outside of a cell surface membrane, such as the membrane that encloses an axon. और resting potential क्या है? ये डिफाइन करने को आता है। It is the difference in the electrical potential that is maintained across the cell surface membrane of a neuron when it is not transmitting an electric action potential. It is normally about -70 milliwatt inside and is partly maintained by the sodium potassium pumps. Is it clear? समझ आ गया? जी सर। अब channel proteins मौजूद हैं that respond to the changes in the potential difference across the membrane are closed ताकि सोडियम और पोटेशियम आयंस बाहर और रिफ्यूज ना कर सके। द मेम्ब्रेन हैज हम इनको वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैनल प्रोटीन्स बंद और खुल कब रही है? बाय द चेंजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस। आपके वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं तो ये खुल बंद रही है। नाउ दीज मेम्ब्रेन्स हैव प्रोटीन चैनल्स फॉर पोटेशियम एंड सोडियम जो कि हमेशा खुली भी रहती है। देयर आर फार मोर ऑफ दीज फॉर पोटेशियम दैन फॉर सोडियम एंड देयरफॉर मोर पोटेशियम आयंस को डिफ्यूज आउट। अब हुआ क्या था कि जो आपके पास पंप है, ये पंप 2 सोडियम आयन अंदर भी तो बुला रहा था, और 2 पोटेशियम आयन अंदर बुला रहा था, और 3 सोडियम आयन बाहर पंप कर रहा था। लेकिन कुछ प्रोटीन चैनल ऐसे हैं जो कि पोटेशियम को वापस बाहर भेज रहे हैं, तो इसलिए बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लग गया था और अंदर नेगेटिव। हाउएवर देयर आर मेनी लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल एज वेल। सेल के अंदर लेकिन अभी भी बहुत सारे कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, अदर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, कुछ वेसिकल्स, कुछ और सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज्यादा अंदर का फिर भी नेगेटिव ही मेंटेन रखती हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज इफेक्ट्स इज एन ओवरऑल एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस इनसाइड द मेम्ब्रेन कंपेयर्ड विद द आउटसाइड। अब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इट इज relatively impermeable to sodium ions, but there are two things that can influence the inward movement of the sodium ions through an action potential. नंबर वन, एक स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो एक स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अब वो कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल शुरू कैसे होगा। पहला रीजन है स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे? कि बाहर देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस और अंदर देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो पहली चीज जो एक्शन पोटेंशियल या मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस को इनेबल करेगी कि वापस अंदर आए, वो है आपके पास एक स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पे आना है, आपने एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आना है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का भी नाम देते हैं। एंड दैट इज व्हाट गिव्स अ स्टार्ट टू योर एक्शन पोटेंशियल। एंड विद अ वेरी स्मॉल एडिशन टू द apparatus शोन, इट इज पॉसिबल टू स्टिमुलेट द एक्सॉन। जैसे आपने कौन सा स्टिमुलस दिया था? आपने एक इलेक्ट्रोड अटैच किया था और उसको करंट दे दिया। A very brief small electric current was given and the axon is stimulated in this way. The steady trace on the computer scene suddenly changes as well. And you can see किस तरह से एकदम से वो impulse travel करना शुरू की और आपके पास एकदम से slightly depolarization occur होगी। कैसे? We know that जो आपका एक्सॉन का पोटेंशियल डिफरेंस था, वो एकदम से क्या हुआ? -70 मिलीवॉट से एकदम +30 मिलीवॉट पे हुआ। कैसे? ये आपके पास -70 था, एकदम से +30 भी गया, डीपोलराइजेशन, और फिर वापस रीपोलराइजेशन होते होते हाइपर पोलराइजेशन भी होगी, जो -70 से भी -90 तक चली जाती है, और फिर वापस रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद वो रिपोलराइज होती है। तो ये वाले ग्राफ की शेप जो हमने कल वीडियो में भी देखा था, ये थोड़ा सा ज़हन में रखो, तो आगे आपको सारी समझ आएगी। ये -70 वाला पॉइंट है, ये +30 वाला पॉइंट है। तो एक्शन पोटेंशियल के दरमियान ये एक चेंज आता है, -70 टू +30। क्यों? क्योंकि आपके पास सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो गए। कैसे? इट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द परमेबिलिटी ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन टू द सोडियम आयंस एंड द पोटेशियम आयंस। आपके पास कुछ चैनल प्रोटीन्स थी जिन्होंने सारे सोडियम आयंस को और सारे पोटेशियम आयंस को अंदर बुला लिया,
अंदर वाला आके आपने पॉजिटिव करना शुरू कर दिया. As well as the channel proteins that are open all the time, there are other channel proteins in the cell surface membrane as well that allow the sodium ions or the potassium ions to pass through. These open and close depending on the electric potential across the membrane. इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स का भी नाम देते हैं. और जब रेस्टिंग पोटेंशियल होते हैं ये चैनल उस वक्त बंद होते हैं, क्योंकि अगर ये चैनल रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त खुल गए तो आपका जो सारी मेहनत आपका सोडियम पोटेशियम पंप कर रहे हैं सोडियम को बाहर भेजने में, ये वाले चैनल अगर खुले होते सोडियम वापस अंदर आता रहता, तो अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव ही रहता. सो दीज चैनल प्रोटीन्स ये हमेशा बंद होती है किस वक्त? जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ताकि आपका अंदर वाला सारा नेगेटिव ही रहे और सोडियम आयंस बाहर ही रहे. लेकिन ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल दीज चैनल प्रोटीन्स ओपन, ताकि सारे सोडियम आयंस दोबारा से और पोटेशियम आयन दोबारा से अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए और अंदर वाली साइड आपके पास पॉजिटिव कर दे. सो व्हाट इज अ वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन? A channel protein through a cell membrane that opens or closes in response to the changes in the electric potential across the membrane. Is it clear? समझ आ गई? जी सर. Now, first, the electric current used to stimulate the axon causes the opening of the voltage-gated channels. अच्छा खासा axon resting potential पे था, stimulus मिला, आपके voltage gated channel open हो गए. This allows the sodium ions to pass through because there is a greater concentration of sodium ions outside than the inside. मैंने ये बताया था कि बाहर आपके पास अब ज्यादा सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर कम है, तो उन्होंने सारा इनसाइड मूव करना है. दिस वाज द पॉइंट विच वाज द रेस्टिंग पोटेंशियल -70. अब समझो ये आपके पास एक्सॉन था, अंदर इस वक्त सारा नेगेटिव नेगेटिव था क्योंकि सारे सोडियम आयंस सोडियम पोटेशियम को आपने बाहर भेजे हुए थे और पोटेशियम आयन जो अंदर आ रहे थे वो भी बाहर ही जा रहे थे वापस. हुआ ये कि आपने इसको स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देने से क्या हुआ कि कुछ गेट्स खुल गए. उन गेट्स ने क्या किया कि इन सोडियम आयंस को वापस अंदर आने की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से -70 से आपका वोल्टेज कहाँ चला गया? +30 के थ्रू. ये हो गई आपके पास डीपोलराइजेशन. नाउ सोडियम आयंस एंटर थ्रू द ओपन चैनल्स टू बिगिन विद ओनली अ फ्यू चैनल्स ओपन. -70 से आपका कहाँ पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस? +10 पे जाएगा, फिर +20 पे जाएगा और हाईएस्ट पीक कहाँ तक जाएगी उसकी? +30 तक. डिपेंड्स कि कितने ज्यादा आपके पास आते जा रहे हैं, तो मैक्स वो जाता है +30 तक. दिस पोटेंशियल क्रॉस द मेम्ब्रेन विच बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन द इनसाइड. पहले ज्यादा नेगेटिव था इनसाइड में, अब लेस नेगेटिव हो गया. इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन. तो पहली स्टेज थी रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरी स्टेज आ गई आपके पास डीपोलराइजेशन, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं. इसने ट्रिगर किया मोर चैनल्स टू ओपन सो दैट मोर सोडियम आयंस कैन एंटर, और मोर डीपोलराइजेशन आपके पास होने लग गई, इतनी ज्यादा कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो -50 हुआ, फिर -40, -30, -20, +10, +20, और वही मैं बता रहा हूँ कि पीक कहाँ तक गई? +30 तक चली गई. पहले -70 था, -70 से जब हुआ वो -50, दो तीन चैनल खुल गए. अच्छा, दो तीन चैनल खुलने के बाद और चैनल खुले, -30 हुआ, फिर 0 हुआ, और चैनल खुलते गए खुलते गए खुलते गए, जब तक वो +30 नहीं हो जाता, जब तक अंदर वाला बहुत पॉजिटिव नहीं हो जाता, वो ग्रेटर और ग्रेटर डीपोलराइजेशन होती रहती है. So these action potentials are only generated if the potential difference reaches a value of -60 और -50. अच्छा, ये एक्शन पोटेंशियल शुरू कब होगा? डीपोलराइजेशन होना और वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलना स्टार्ट कब होंगे? आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70. एटलीस्ट आपको इसको स्टिमुलेट करना होगा -60 तक. इसको आप -60 तक बस स्टिमुलेट कर दो ना, हल्का सा इसको चाबी दे दो, तो वो आगे खुद ही +30 तक चला जाएगा. तो जो आपका थ्रेशोल्ड है ना, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको हल्का सा उसको सेल्फ देना पड़ता है. एक्शन पोटेंशियल खुद ही से तो नहीं होगा ना, आपको उसको -70 तो रेस्टिंग है, -70 से आपको कोई 10 का देना पड़ेगा कि वो -60 हो जाए खुद ही. इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. बाकी वो +30 खुद ही होगा जब एक एक करके सारे चैनल्स खुलेंगे और सारे सोडियम अंदर आते जाएंगे और अंदर वाली साइड जो रेस्टिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी. इज दिस क्लियर? समझ आ गया? जी सर. आफ्टर अबाउट 1 मिली सेकेंड ऑल सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड. जैसे ही आपने इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दे दिया ना, उसने कहा बस आगे अब हम खुद खोल लेंगे, और चैनल खुला,
एक और चैनल खुला, खुलता गया खुलता गया, खुलते ही गए जब तक मैक्सिमम डीपोलराइजेशन हो गई +30 तक। About after 1 millisecond, they all close, and the sodium ions stop diffusing into the axon because +30 reach हो चुके हैं, अब बस कर दो। At the same time, another set of voltage-gated channel proteins open to allow the diffusion of potassium ions out of the axon. उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो गया, ज्यादा ही नहीं हमने पॉजिटिव कर दिया। अब आपके पास सोडियम चैनल्स के बजाय क्या खुलेंगे? सोडियम बंद, अब खुलेंगे पोटेशियम वाले। पोटेशियम वाले कहेंगे यार हम भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। सोडियम तो बेचारे वैसे ही बहुत अंदर आ गए, रश नहीं मच गया, हम ना बाहर चले जाते हैं। तो पोटेशियम वाले ना अब वापस बाहर जा रहे हैं कि हमने अंदर बेचारा ज्यादा ही पॉजिटिव कर दिया है। और वो इतने सारे बाहर जाते हैं कि वो वापस से +30 को क्या कर देते हैं, +-70 पे ले आते हैं। बैक टू योर रेस्टिंग पोटेंशियल। वी कॉल इट रीपोलराइजेशन, विच इज द थर्ड स्टेज। In fact, the potential difference across the membrane becomes even more negative than the normal resting potential, and the potassium ion channel proteins then close, and the sodium ion channel proteins become responsive to the depolarization again. इतना repolarize हो जाता है कि वो अब दोबारा अगली depolarization के लिए भी तैयार हो चुका है। और अब दोबारा से मेंटेनेंस किसकी होने लग जाएगी? जब repolarization हो गई है, अब सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा काम करेगा ताकि वो मेंटेन रख सके द रेस्टिंग पोटेंशियल। Is it clear? Yes. So depolarization is the reversal of the resting potential across the cell surface membrane of a neuron or a muscle cell so that the inside of the become positively charged compared with the outside. Threshold potential is the critical potential difference जो कि -60 या -50 तक आप उसको बस ले आओ। वो एक सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेता है और आपका एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो जाता है। रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या था? -70 टू +30। और रीपोलराइजेशन क्या है? +30 टू -70। -70. ये भी हो गया। अब दोबारा से आपके सोडियम पोटेशियम पंप्स खुल चुके हैं ताकि वो मेंटेन रख लें। These pumps maintain the distribution of the sodium ions and potassium ions across the membranes so that the action potentials can continue to occur. Use your finger to tap on one place on a hard surface such as your table and tap faster. आप कितनी ही दफा 1 सेकंड के अंदर टैप कर लोगे? आप 15 सेकंड तक भी कितनी ही को टैप कर लोगे? तो सोचो, वो इतनी ज्यादा टैपिंग होती है उसकी उसकी इतनी ज्यादा टैप्स होते हैं कि आप तब भी एक एक्शन पोटेंशियल की इक्वल नहीं आ सकते। कंपेयर दिस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्पल्सेस इन अ न्यूरॉन, 1000 टाइम्स ज्यादा तेज है। आप एक ही टाइम पे 1 सेकंड में कितनी दफा टैप कर लोगे? 4-5 दफा बस। Figure 15.13 shows what happens at one particular point in the axon membrane और कैसे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब अभी तक हमने नहीं देखा कि एक एक्सॉन के थ्रू इम्पल्स ऐसे इस तरह आगे गई कैसे। जब एक एनी एक्शन पोटेंशियल एट वन पॉइंट इन एक्सॉन सेल ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल ऑन आइदर साइड। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हुआ, ठीक है, उसने उसी वक्त यहाँ पे ट्रिगर कर दिया और यहाँ पे खत्म हो गया। फिर इसने यहाँ पे ट्रिगर किया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो बाय द डिफरेंस इन दिस होल एक्शन पोटेंशियल, आगे से आगे आगे वो ट्रांसफर होता जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास सिग्नल भी उसी तरह ट्रांसफर हो जाता है। टेम्पररी डीपोलराइजेशन हो रही है ना बेसिकली ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉजिंग द करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द डीपोलराइज्ड रीजन and the resting regions on either side of it. These local circuits depolarize the resting regions where the voltage gated sodium ion channel proteins open और आपका threshold potential पे पहुंच जाता है। करंट फ्लो क्यों कर रहा होता है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये रेस्टिंग है, ये रेस्टिंग है, यहाँ पे क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल हुआ, यहाँ पे एकदम से आगे जाएगा सिग्नल। अब थोड़ी देर बाद ये वाला रेस्ट हो जाएगा और आगे एक और एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह करते करते ये आगे सिग्नल आपके पास पास ऑन हो जाता है। The depolarization on both sides of the action potential only happens in an experimental situation when a stimulus is applied somewhere along an axon, as in the figure 15.14. In the body, action potentials begin at one end of the axon, such as the junction between the axon and the cell body, and the new action potentials are generated ahead and not behind. दिस इज बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज रिकवरिंग फ्रॉम एन एक्शन पोटेंशियल जो अभी अभी हुआ है। अभी आगे एक्शन पोटेंशियल जाता है तो पीछे वाला रिकवर कर रहा होता है, उस रिकवरी पीरियड को हम कहते हैं
रिफ्रैक्टरी पीरियड, और उस वक्त वो वाला हिस्सा एक्सॉन का अनरिस्पॉन्सिव होता है। एक्शन पोटेंशियल्स आर वेरी डिस्क्रीट इवेंट्स, दे डू नॉट इवन मर्ज इनटू वन अनदर। पहला खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, और जब दूसरा स्टार्ट हो चुका है तो पिछला रिकवर करेगा। There is a minimum time between the action potentials occurring at one place, at any one place on a neuron. The length of the refractory period determines the maximum frequency at which the impulses are transmitted along the neurons. And for many neurons, this is between 200 and 300 impulses per second. And the impulse can only travel in one direction along the neuron. Is it clear? Yes. All right. So, how do action potentials carry information? Action potentials do not change in size as they travel, nor they change in size according to the intensity of the stimulus. उनका वोल्टेज, उनके वैल्यू सेम ही है। आपको पता है कि आपका डीप पोलराइजेशन की वैल्यू +30 ही रहेगी फॉर द होल लेंथ ऑफ द एक्सॉन। अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शाइनिंग इन योर आईज प्रोड्यूसेस एक्शन पोटेंशियल एज द सेम वोल्टेज। चाहे आपकी आंख में हल्की लाइट पड़े, रिस्पॉन्स +30 का ही होगा। चाहे ब्राइट लाइट पड़े, रिस्पॉन्स +30 का ही होगा। What is different about the action potentials is resulting in the strong and weak stimuli, their frequency। फर्क सिर्फ फ्रीक्वेंसी का आता है कि कितनी दफा वो लाइट पड़ी। फ्रीक्वेंसी या एक्शन पोटेंशियल इस वजह से फर्क नहीं होगा कि कभी आपको तेज टॉर्च मारी किसने आंख में, या आपको हल्की टॉर्च मारी आंख में। चेंज कब होगा एक्शन पोटेंशियल? जब आपको 4-5 दफा दे मार आपकी लाइट मारता जाए आंखों में, वो आपको चेंज करेगा। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एक चीज होती है कि आपकी आंख पे आके कोई पत्थर लग गया, ठीक है, या आपने एक हाथ रखा होता माचिस के ऊपर, और आपने हाथ रखा होता पूरे आग के ऊपर। ज्यादा स्टिमुलस कहाँ पे जा रहा है? जहां पे ज्यादा गर्म लग रहा है। ज्यादा गर्म लगे या हल्का गर्म लगे, स्टिमुलस और एक्शन पोटेंशियल सेम ही होगा। फर्क कब आएगा? जब आप बार बार आग को हाथ लगा रहे हो हर 5 सेकंड बाद। समझ आई? Hmm. इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टिमुलस। आपको आंख में धूप लगी या आपको आंख में डस्ट पार्टिकल लगा, स्टिमुलस सेम है। फर्क कब आएगा? जब आपको बार बार डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में जाता रहेगा। दैट इज गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। A strong stimulus is likely to stimulate more neurons than a weak stimulus, whereas a weak stimulus might result in action potentials passing along just one or two neurons. लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं तो more and more action potentials would be produced। अब ब्रेन ना ये फ्रीक्वेंसी इंटरप्रेट कर लेता है कि यार एक डस्ट पार्टिकल की समझ आई थी, या एक दफा इस बंदे ने हाथ रखा था, बार बार क्यों रखे जा रहा है? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल बार बार जनरेट हो रहे हैं, और पागल आदमी बार बार हाथ लगा रहा है आग के ऊपर, और ये सेंसी न्यूरॉन तो बार बार सीएनएस को वो भेज रहे सिग्नल। एंड द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैरिंग एक्शन पोटेंशियल्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस बीइंग डिटेक्टेड। द नेचर ऑफ द स्टिमुलस, whether it is light, heat, touch, or so on, that is reduced from the position of the sensory neuron bringing the information. If the neuron is from the retina of the eye, पता लग जाएगा कि यार बंदे की या तो आंख में कुछ गया है या आंख से कुछ रिलेटेड है। अगर कहीं और से आया आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, तो पता लग जाएगा किस पार्ट से आया है। तो आप जो रिस्पॉन्स भेजोगे वो भी आप उसी बॉडी के हिस्से पे भेजोगे। गॉट इट? Okay. So what is the refractory period? It is a period of time during which a neuron is recovering from an action potential and during which another action potential cannot be generated. Now the speed of conduction of impulses कैसे? Two factors determine the speed of this conduction: presence or absence of myelin and the diameter of axons. Can you tell me कैसे affect करेंगे ये दो factors? Okay, so when there's myelin present, obviously it's going to be slow because like myelin obviously like it's helping in insulation. So unmyelinated or myelinated sheet like axons can यही फर्क होगा कि there's like fast and slow. So that's one. तो आप कह Yeah, रहे हो माइलिनेटेड में तेज होगी? not necessarily, but myelin does speed up यस, the सही कह rate. रहे हो। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द स्पीड ऑफ कंडक्शन इज स्लो। ठीक है, जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उनमें स्लो है, बट इन माइलिनेटेड मेमेलियन न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल की बहुत ज्यादा स्पीड होती है। आप कंपेयर करो अनमाइलिनेटेड वर्सेस माइलिनेटेड। माइलिन एक मेम्ब्रेन है ना, एक थिन शीट है दैट इज कवरिंग द एक्सॉन्स। Myelin speeds up the rate at which the action potentials travel by stimulating the axon membrane. Sodium and potassium ions cannot flow through the myelin sheet, so it is not possible for the depolarization or action potential to occur। भाई जब आपके पास माइलिन शीट ही नहीं है, जब मेम्ब्रेन ही नहीं है,
तो कौन डिफ्यूज, कौन बाहर अंदर डिफ्यूज क्या करेगा जब आपके पास कोई कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स कुछ भी नहीं है? So action potential can only occur at the nodes of Ranvier, where all the channel proteins and pump proteins are concentrated. Uh, Exist from one node to the next. Thus action potential jump from one node to the next. वो आपका जो nodes of Ranvier है वो point है, एक gaps होते हैं between the axon. This is also known as saltatory conduction, and in a myelinated axon, saltatory conduction can increase the speed of transmission to up to 50 times as well than in unmyelinated. तो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल along a myelinated axon in which the action potential jumps from one node of Ranvier to the next. And the diameter also affects the speed of transmission. For example, पहला फैक्टर तो हो गया माइलिन, दूसरा फैक्टर जो स्पीड ऑफ कंडक्शन अफेक्ट करता है वो है डायमीटर. Diameter also affects the speed of transmission. Thick axons transmit impulses faster than the thin ones. This is because they have a greater surface area over which the diffusion ions can occur, which increase the rate of diffusion. Earthworms हो गए, which have no myelinated axons, have a very small number of very thick unmyelinated ones that run along their body. तो जो thick axons होंगे वो faster होंगे क्योंकि ज्यादा surface area है, और ज्यादा surface area होने से आपके पास rate of diffusion बढ़ जाता है. These are known as the nodes of Ranvier, जहां पे आपका जंप होके सॉल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू 50 टाइम्स नर्व इम्पल्स इंक्रीज कर जाता है. क्योंकि जब वो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द आ रहे तब तो पूरा एक्शन पोटेंशियल का ही वेट हो रहा है, इधर अंदर बाहर अंदर बाहर. यहाँ पे उसको एक मौका मिल जाता है, यार चलो जल्दी से जंप मारो, कोई हमने एक्शन वैक्शन नहीं करना, ठीक है, तो ये जरा 50 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे. इज इट क्लियर? Yes. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट स्टार्ट्स इन एक्शन पोटेंशियल? स्टिमुलस. स्टिमुलस किस टाइप के हो सकते हैं? There's light, there's a light, pressure, touch, Good. temperature, The whatever. stimulus for an action potential described earlier is a very small current. In life action potentials कैसे हो सकती है? ये तो हमने लैब में किया था. लैब में आप क्या करोगे? यू आर गिवन गोइंग टू गिव अ स्मॉल करंट, ठीक है, P5 में आ सकता है. सही है. नाउ रियल लाइफ में लाइट है, प्रेशर, टच, साउंड, टेम्परेचर या केमिकल्स. A cell that responds to one such stimulus by initiating an action potential is called a receptor cell. Receptor cells are the transducers. क्यों? They convert the energy of the stimuli into electrical impulses. उन्होंने डिटेक्ट किया, अब वो डायरेक्टली उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजेंगे न्यूरॉन से, और न्यूरॉन आपके पास सीएनएस से भेजेगा. रिसेप्टर सेल्स अब होते क्या है? सेंस ऑर्गन्स में, जैसे आई में हो गए, स्किन में हो गए, ठीक है, सच एज द लाइट रिसेप्टर्स इन आई का नाम है कीमो रिसेप्टर्स. आपने सारे याद नहीं रखने बॉडी में कितने हैं, वो तो बहुत टाइप्स है. एक दो आपके जो सिलेबस में है वो है, जैसे कि एक लाइट रिसेप्टर्स हो गए आई के अंदर, या फिर टेस्ट बर्ड्स के अंदर भी हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स के अंदर भी हैं, उनको भी हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं. Chemoreceptor is a cell that responds to a chemical stimuli, and chemoreceptors are found in the taste buds, on the tongue, in the nose, blood vessels, where they are also responsible for detecting the changes in oxygen and carbon dioxide concentration. इसके अलावा आपके पास ये सारी लिस्ट दी हुई है सारे रिसेप्टर्स की, दैट व्हाट डू दे सेंस, और वो एनर्जी किस तरह से, उनकी एनर्जी क्या होती है. जैसे कि अगर आप हेयर सेल्स को देखोगे, जो हेयर सेल्स हैं उनका काम क्या है? हेयरिंग. और वो साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. फिर आप ले लो जैसे कि मेसनर्स कॉर्पस्कल्स इन स्किन, ठीक है, ये टच को सेंस करते हैं और ये मूवमेंट और प्रेशर को ट्रांसफर करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, स्मेल को इन फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल ट्रांसफर करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, which detect a specific type of stimulus and influence the electrical activity of a sensory neuron. Other receptors, such as some kinds of touch receptors, are simply the ends of the sensory neurons themselves. Your tongue is also covered in many small bumps or papillae, and each papilla have a many taste buds over its surface. एक टेस्ट बड पे 50 से 100 receptor cells are there which are very sensitive to different chemicals and the different substances or the food or the liquids that you are actually drinking, जो कि आपके saliva में dissolve होके इन receptors को डिटेक्ट हो जाते हैं. Each chemoreceptor is covered with a receptor protein that detects these different chemicals, and there are several types of receptor proteins, each detecting a different type of chemical and giving you a different sensation. आपको पता है डिफरेंट टेस्ट बड, स्वीट का अलग है, सावर अलग है, सॉल्ट अलग, बिटर अलग, यूनामी मतलब कि
सॉल्टी सेवरी अलग टेस्ट देता है। कीमो रिसेप्टर्स इन द टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट सॉल्ट आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोडियम आयंस। अब कीमो रिसेप्टर कैसे अफेक्ट होते हैं? सोडियम आयंस की गेम है। These ions diffuse through highly selective channel proteins in the cell surface membrane of the microvilli। इन रिसेप्टर्स के ना ये माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस डिफ्यूज करते हैं इनटू द माइक्रोविलाई और उससे डीपोलराइजेशन हो जाती है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि दो सोडियम आयंस आर गोइंग टू एंटर द माइक्रोविलाई, अंदर वाला ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे और डीपोलराइजेशन हो जाएगी और आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा? receptor potential. If there is sufficient stimulation by the sodium ion, the receptor potential becomes an action potential in the sensory neuron that transmits the impulses। अगर आपका receptor potential इतना ज्यादा stimulate हो जाए तो फाइनली एक एक्शन पोटेंशियल में तब्दील हो जाता है और वो अब आगे आपके पास मैसेज भेज सकता है। गॉट इट? वो इतना लार्ज Yeah. इनफ हो जाता है दैट इट कैन स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन्स एज वेल, जो कि मजीद एंटर हो जाएंगे, मजीद न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स लेंगे और वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। When receptors are stimulated, they are depolarized. And if the stimulus is very weak and below the threshold, the cells are not depolarized very much, and the sensory neuron is not activated to send impulses. If the receptive potential is above the threshold, फिर ही आपके पास सेंसरी न्यूरॉन तक जाएगा। मतलब एक चीज होती है कम खट्टा लगा, नहीं फील होगा। ज्यादा खट्टा लगा, इतना पोटेंशियल रीच किए कि आपको हाँ अब पता लगे कि यार ये तो प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ब्रेन तक मैसेज किया है, और आप एकदम से एक अजीब सी शक्ल बनाओगे जब आपको खट्टा महसूस होगा। कम होगा तो नहीं बनाओगे क्योंकि ब्रेन ने कोई रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं किया पीछे से। This is an example of the all or none law as well, where the neurons either transmit impulses from one end या फिर वो नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? हल्का सा खट्टा लगा, इतने ज्यादा आपके पास वो थ्रेशोल्ड रीच ही नहीं हुआ, लेकिन जब थ्रेशोल्ड रीच होगा तो ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, इतनी गंदी शक्ल बनाओगे वो खट्टा महसूस करके कि लग पता जाएगा। So as you have already seen, the action potentials always have the same amplitude। वो तो हमने बात की थी कि यार वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती। जैसे न्यूरॉन्स की +30 तक ही जाएगी, इसका भी कोई ना कोई अपना इंटेंस वैल्यू होगी। द एक्शन पोटेंशियल्स, लेकिन स्टिमुलाई का अगर आप नंबर इंक्रीज करोगे, ये नहीं कि आप एक कम खट्टी चीज, ज्यादा खट्टी चीज या उससे ज्यादा खट्टी चीज ले आए। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन अगर आप बार बार हर 2 मिनट के बाद वो खट्टी चीज खाओगे तब आपके पास इंटेंसिटी एक्शन पोटेंशियल की तब बढ़ेगी जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ऑफ द स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टिमुलस बढ़ाने से एक्शन पोटेंशियल्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर। गॉट इट? Yeah. ऑल और नन लॉ क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स एंड द मसल सेल्स ओनली ट्रांसमिट impulses if the initial stimulus is sufficient to increase the membrane potential above a threshold potential, and the threshold levels in the receptors rarely stay constant, and with continued stimulation they often increase so that it requires a greater stimulus before receptors send impulses along the sensory neurons। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग साइनेप्सेस। साइनेप्सेस क्या होते हैं और वो जो हमने कल डिस्कस किया था, एवरीथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम अ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन फ्रॉम प्री एंड पोस्ट इन बिटवीन द क्लेफ्ट एज वेल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर बायोलॉजी। फिर हम कल साइनेप्सेस स्टार्ट कर लेंगे।